Yeah. Do you have any questions? आप लोगों के पास कोई प्रश्न है? Pastor, yeah. Yeah. Like an unbeliever had a chip, like the chip is given by this all people. So like after he realized that if the chip would be not there, I would go to heaven. So if he cut his hand and repent himself, is that possible? Like possibility? उनका प्रश्न ये है I've कि never heard this question before. कि अंतिम दिनों में जो चिप लगाई जाएगी आपके उल्टे हाथ में, यदि वो चिप लगाने के बाद उसका मन बदल जाता है और वो अपना हाथ काट लेता है, तो क्या उसको मौका मिलेगा? पास्टर कह रहे हैं ऐसा प्रश्न मैंने आज तक कभी This नहीं is like what Jesus told. If your hand causes you to sin, cut it off and go. सुना। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरा हाथ अगर पाप कराए तो काट दे, बेहतर है कि बिना हाथ के स्वर्ग के If राज्य your में eyes प्रवेश cause you to sin, pull out one eye and go to heaven. कर। और आंख में पाप हो तो निकाल दो उसको। The answer is no. उत्तर है ना। The moment you put the mark, और जैसे ही आपने छाप लगाई it is done. और खत्म। You cut your hand, you do what you want, nothing will happen. हाथ काटो, टांग काटो, आंख फोड़ो, जो मर्जी है, नहीं हो पाएगा। Because it is a decision that's already made. क्योंकि ये See, now, ऐसा, yeah, go ahead. और ऐसा है कि ये पहले ही निर्णय बना लिया गया है। Now you and I can make a decision and say, hey, I'm living in sin. I want to turn to Jesus. और अभी हम निर्णय ले सकते हैं कि अरे मैं पाप में जी रहा हूं, लेकिन अब पाप में नहीं, लेकिन यीशु के पीछे चलना चाहता That's how all of us have become believers. हूं। और ऐसे ही हम सब विश्वासी बने हैं। That's the grace of God. और ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। But if you put the mark, it's not about, okay, I've cut the hand which has the mark. It's not about that. It's about the heart. और देखिए ये इस बारे में नहीं है कि मैंने हाथ में वो छाप लगा लिए तो मैं काट दूं, नहीं, ये हमारे हृदय के बारे में है। It's like this. See, Pharaoh saw all the miracles. और ये बिल्कुल ऐसा है कि फिरौन ने सारे चमत्कार देखे। Yes, he saw all the miracles. और उसने सारे चमत्कार Yet देखे, his heart was hardened. लेकिन फिर भी उसका हृदय कठोर था। The Jews living during Jesus' time, और यहूदी लोग जो यीशु मसीह के समय में जी रहे थे, they saw all the miracles. और उन्होंने सारे चमत्कार देखे, But yet their heart was hardened. लेकिन फिर भी उनके हृदय कठोर थे। So during that time, their hearts will be hardened. और उस समय में उनके हृदय जो हैं वो कठोर किए जाएंगे। Once you take the mark, it's very unlikely that they will change. और देखिए एक बार Very जब unlikely. It won't छाप happen. लगा ली जाएगी, ये असंभव है कि मन परिवर्तन हो। It looks unfair, but it's not unfair. और ये अन्याय जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अन्याय नहीं है। So the answer is no. और तो उसका उत्तर ना होगा। Anyone else? Yes. Can you speak into the mic so that the others can? Revelation 9:13, the sixth trumpet. Yeah. It says, I heard a voice from the four horns of the golden altar. So what is this four horns? Now, if you read the book of Ezekiel, यदि आप इज़ेकियेल की किताब को पढ़ेंगे, Ezekiel chapter 1, इज़ेकियेल उसका पहला अध्याय, now we must understand, see, there's a lot of this kind of poetic writing in the book of Revelations. और हमें इस बात को समझना है कि कविता के रूप में बहुत सारी बातों को लिखा So गया there है। are some things we may not understand. और yet. कुछ बातें होंगी शायद जो हमें समझ में ना आए। But if you look at Ezekiel chapter 1, it gives a description of the throne room of God. और जब आप इज़ेकियेल पहला अध्याय देखेंगे तो वो परमेश्वर के सिंहासन के बारे में एक थोड़ा वर्णन दे रहा है। Right? And it talks about, I think it's 4 animals. Well, each of the 4, a man, a lion, an ox,
and there is one more, I think. 4 living creatures. What is it? Eagle. Yes. और देखिए वहां लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के मुख के समान और एक सिंह के मुख के समान, एक बैल के मुख के समान और उकाब पक्षी के मुख के समान। पहला अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है। It is most likely it's referring to those 4 attributes: the face, the lion. I'm sorry, what's that? The eagle. So you must understand. So this is God and His attributes. It's not really an eagle sitting there. और देखिए ये जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर के गुणों के बारे में दर्शा रहा See, है। these writers are writing what they seen in the vision. और ये लेखक हैं उन बातों को लिख रहे हैं जो दर्शन में उन्होंने देखी है। The visions can be, we can't take it literally. और Not all दर्शन visions. को हम हमेशा शाब्दिक नहीं ले सकते। See, most of us would have got dreams or visions, right? और हम में से अधिकतम लोगों को स्वप्न और दर्शन तो दिखाई देता ही है। Sometimes we are, in the dream we are in one place and suddenly we go to a different place in a moment. और देखिए सपने में हम एक जगह पे होते हैं और एक ही क्षण में हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। So it's a depiction. That's what it is. Depiction of who God is. और ये परमेश्वर कौन है उसके गुणों का या उसके बारे में दर्शा रहा है। And the thing is, you'll see plenty of them all across the book of Revelation. You'll see plenty of this. और आप पूरे प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी जगहों पे ऐसे बहुत सारे वाक्यों को देखेंगे। Yeah, so that's like going into the detail. Right? और ये ऐसा है कि हम उसकी गहराई में उसके विवरण में उतरकर उसको देखें। And there are some places I don't understand because it's written things which I don't understand some places. और कई स्थानों पर ये मैं भी नहीं समझता हूं क्योंकि बहुत गहराई के साथ में वो लिखा गया है। Okay, so now let's get into what I want to do this hour. और इस समय में मैं क्या करना चाहता हूं, I just want to talk about 3 aspects that happened during the tribulation period. और देखिए सताव के समय के अंदर में वो 3 बातें जो होने पर है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। So we saw these judgments upon those who are unbelievers. और हमने देखा कि जो गैर विश्वासी है उनके ऊपर में जो न्याय होने पर है। And we saw that the believers were not touched by any of these difficult judgments of God. और हमने ये देखा कि विश्वासी लोग परमेश्वर के द्वारा जो न्याय किए गए समस्याओं को उत्पन्न किया गया एक भी विश्वासियों के ऊपर नहीं आई। But we also know that God is not simply quiet. और हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर चुपचाप बैठा देख नहीं रहा था। God is still working on building His kingdom. परमेश्वर अपने राज्य को बनाने के लिए कार्य में तत्पर लगा था। Remember this. और इसे याद रखें, During the tribulation, there will be Or- natural births. People will be getting married, having children. Everything will be normal. और देखिए सताव के समय पर स्वाभाविक जीवन चलेगा, लोगों के विवाह होंगे, संतानें उत्पन्न होंगी, लोग मिलेंगे जुलेंगे। Now we don't know. We know that the baby is not born with a mark. और हमें ये पता है, हमें ये नहीं पता No, the baby is not born with the mark of the beast. और जो बच्चा पैदा होगा वो उस पशु के चिन्ह के साथ पैदा नहीं होगा। So you can have 2 people, husband and wife, who have the mark of the beast. और ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी तो हैं, उनके हाथ में चिन्ह होगा They may have a child. और उनका एक बच्चा हुआ They haven't put the mark for the child. और उन्हें बच्चे को चिन्ह नहीं But लगाया, the child, as he grows up, he becomes a believer. और जैसा वो बच्चा बढ़ता है वो विश्वासी बन जाता है। Possible. और संभव है, You understand that, आप समझ रहे हैं। right? Maybe he's 15 years old and he sees, and maybe somebody goes and evangelizes. He believes in Jesus. और देखिए चाहे 14-15 साल के अंदर में कोई उनसे मिलता है, सुसमाचार सुनाता है और वो सुन के विश्वास में आ जाते हैं। So natural life is continuing. और जो स्वाभाविक जीवन है वो आगे चलता रहेगा। It keeps going on even in the millennium period. और ये मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में भी वैसा ही चलता रहेगा। So let's see what happens. Firstly, God chooses 1,44,000 Jewish evangelists. और देखिए सबसे पहले हम इस बात को देखें कि परमेश्वर 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारकों को चुनता है।
what do these 1,44,000 evangelists do? और 1,44,000 सुसमाचार प्रचारक करेंगे क्या? It says here in Revelation 7 प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा है that there are 12,000 from each tribe. और 12,000 हर एक गोत्र से. It says here, they will be great evangelists. It's during the tribulation period. और वो लोग सताव के समय में बड़े महान सुसमाचार प्रचारक होंगे. Now, listen to this. 1,44,000 Jewish evangelists. और 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारक. And these 1,44,000 will go all around the world. और ये 1,44,000 जो है संसार भर में जाएंगे. They will go preach the gospel with signs, wonders, and miracles. और वो लोग जाकर चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करेंगे. Now, we may ask, what about us Indians? We are there in this or no? और हम ये सवाल कर सकते हैं हम भारतीयों का क्या है, हम होंगे या नहीं होंगे? No, you're not there. और नहीं, आप नहीं होंगे. God has very specifically chosen Jewish evangelists. परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से यहूदी सुसमाचार प्रचारकों को चुना है. So they'll go and start doing meetings all across the world. और वो लोग जाएंगे और संसार भर के अंदर में सभाओं को आयोजित करेंगे. How they'll do it? और वो कैसे करेंगे? Empowered by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा. Imagine one evangelist will say, I'm coming to India. और सोच कर देखिए, एक सुसमाचार प्रचारक कहता है मैं भारत आ रहा हूँ. Or another evangelist will say, I'm going to this other country. और दूसरा कहता है मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ. One will say, I'm going to Russia. One will say, I'm going to China. और एक कहेगा मैं रशिया में जा रहा हूँ, मैं चीन में जा रहा हूँ. And they will go and preach the gospel. और वे जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे. And the best part is there will be a world revival. और सबसे अच्छी बात यह है कि संसार भर के अंदर में एक जागृति आएगी. People will accept Jesus. और लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे. Imagine. People will accept Jesus at that time. और लोग जो हैं उस समय में भी मसीह को ग्रहण करेंगे. These 1,44,000 Jews will go through Jewish evangelists. They'll go through a lot of persecution. और ये 1,44,000 जो सुसमाचार प्रचारक हैं बहुत सताव से होकर गुजरेंगे. But God will bring fruit in their lives. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सेवकाई में और जीवन में फल लेकर आएगा. Now, lot of them have said these all kinds of things. These 1,44,000 are only 1,44,000 will go to heaven. और देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं. कई लोग कहते हैं कि केवल 1,44,000 लोग ही स्वर्ग जाएंगे. That is a wrong understanding. और वो गलत समझ है. Another wrong understanding is saying only 1,44,000 Jews will be saved. और एक गलत समझ ये है कि केवल 1,44,000 यहूदी ही उद्धार पाएंगे. Then there's another thinking that only 1,44,000, only the Pentecostals will be saved. और फिर एक और विचार है लोगों के मध्य में कि जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं उसमें से केवल 1,44,000 लोग ही स्वर्ग जाएंगे. All the others will die. और बाकी के सारे मर जाएंगे. No, we must think. और हमें सोचने की जरूरत है. Why is God calling 1,44,000 Jews? और क्यों परमेश्वर 1,44,000 यहूदियों को बुला रहा है? So that they can go out and reach out to the world. और ताकि वे लोग संसार में जाकर यीशु के सुसमाचार को सुना सके. See, all these troubles that are there, no? और जितने भी ये सारी समस्याएं हैं It will never touch them. और उन्हें कभी छुएगी नहीं. So imagine they'll say, healing service. और वो जाकर कहेंगे चंगाई सभा. Now there are people with sores, boils, scorpion bite. Doctors don't know what to do. और लोग होंगे जहां पर उनके फोड़े हो रहे होंगे और बिच्छू के डंक सा दर्द हो रहा होगा, उन्हें पता नहीं है क्या करना है. So they'll have healing service. और वो चंगाई सभा आयोजित करेंगे. Thousands will come. और हजारों लोग आएंगे. And maybe one of those evangelists will say, believe in Jesus. और एक सुसमाचार प्रचारक कहेगा यीशु पर विश्वास करो. Right now, those who come, they won't have the mark.
और देखिए जो लोग आएंगे उनके पास वो चिन्ह छाप नहीं होगा पशु or का। maybe, or I don't know, we don't know how it's going to be. और हम ये भी नहीं जानते कि ये किस प्रकार से होगा। But what we do know is that these 144,000 Jews will preach all over the world. और लेकिन एक बात हम इस बात को जानते हैं कि ये 1,44,000 जो सुसमाचार प्रचारक हैं संसार भर के अंदर में सुसमाचार प्रचार करेंगे। Don't go backwards, look forward. और पीछे की ओर मत देखिएगा, आगे की ओर They are सोचिए not और going देखिए। like Apostle Paul in one ship and then one more walking, all that is not there. और देखिए पौलुस प्रेरित के समान एक जहाज में जा रहा है फिर समस्याओं का सामना कर रहा, नहीं, उस प्रकार से नहीं होगा। They'll go by flight और वो लोग हवाई जहाज से यात्रा करेंगे because it's going to be there. All of that will be there. और क्योंकि ये सब होगा वहां पर। So ministry will increase. और सेवकाई जो है वो बढ़ेगी। Now, another thing is some of the Jews, they know about this 144,000. और कुछ यहूदी लोग इस 1,44,000 के बारे में जानते हैं। And the Jews say, only God can choose who that 144,000 is. We cannot do anything. और यहूदी लोग इस बात को कहते हैं केवल परमेश्वर ही है जो 1,44,000 यहूदियों को चुन सकता है, हमारे बस में कुछ नहीं है। But they don't believe that it's because they have to go and preach about the Messiah. No, they don't believe that. और देखिए वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि उन्हें जाना है और मसीहा के बारे में प्रचार करना है, वो इस बारे में विश्वास नहीं करते हैं। Mostly they believe that the Messiah will come in the horse और वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीहा जो है वो घोड़े पर आएगा and he'll defeat all the nations of the world और संसार के सारे देशों को हरा डालेगा and he'll choose 144,000 people to be his bodyguards. और वो 1,44,000 लोगों को चुनेगा कि वो उसके अंग रक्षक बनकर रहे। That's not how it is. लेकिन ऐसा नहीं है। The Jews are still waiting for Jesus to come, और Messiah यहूदी- to come. और यहूदी लोग मसीहा के आने का अब तक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। Jesus has come and gone also. और यीशु मसीह तो आकर चला भी गया है। But for the Jews, the picture is he'll come on the clouds. और देखिए उनके दिमाग के अंदर यहूदियों के मन में ये तस्वीर है कि वो बादलों पर आएगा That will happen. और वो होगा। But that's the second coming of Christ. और लेकिन वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। Okay? So, the next thing we want to talk about is two witnesses. Very important. और देखिए अगली बात जो है हम करने वाले हैं वो है 2 गवाहों के बारे में। Now, the two witnesses can be seen in Revelations chapter 11. और 2 गवाह जो हैं प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय में देखे जा सकते हैं। These two witnesses come in the middle, as soon as the beast breaks the 7-year peace treaty in 3.5 years. और देखिए ये जो 2 गवाह हैं ये उनका आगमन तब होगा जैसे ही जो पशु है वो शांति समझौते को तोड़ेगा, भंग करेगा उसके मध्य में। 3.5, maybe in a couple of years, a couple of months, they will come. और देखिए 3.5 वर्ष के शायद हो सकता है कि कुछ महीनों के अंदर में ये दोनों गवाह आ जाएं। These are real men. और ये हकीकत में पुरुष होंगे This is not spirit. और ये आत्माएं नहीं They are not होंगी angels. और ये स्वर्गदूत नहीं होंगे। 2 real men will come. और 2 सच्चे मानव मनुष्य आएंगे। One of them is Elijah. उनमें से एक जो है वो एलिया होगा। Remember Elijah, what happened to him? और आपको याद है एलिया के साथ में क्या हुआ? Yeah. The chariot of fire came, took him and went. और देखिए अग्नि में रथ आया और एलिया को उठाकर ले गया। And so he didn't die a physical death. और वो शारीरिक मौत में नहीं मरा। Now the second witness, और दूसरा गवाह, some of them say it's Moses and some of them say it's Enoch. It could be either one of those two. और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मूसा है, कुछ लोग कहते हैं हनोक है, दोनों में से एक हो सकता है। Reason being,
why people say Moses is because Moses and Elijah appeared at the Mount of Transfiguration. और देखिए कारण क्या है कि लोग कहते हैं कि मूसा आएगा दूसरे गवाह के रूप में, क्योंकि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो एलिया के साथ में मूसा वहां पर यीशु से मुलाकात के लिए So आए थे। mostly it's Moses. और अधिकतम कह सकते हैं कि मूसा हो सकता But some है। of them say it's Enoch because Enoch walked away with God. और कई लोग कहते हैं हनोक होगा क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता उठा लिया गया। But you've got these two witnesses. और लेकिन आपके पास ये दो गवाह हैं, They are not born in like baby and all that. और वो लोग एक शिशु या बालक के रूप में पैदा होने वाले नहीं हैं। Elijah will come back in flesh and blood. और एलिया जो है मांस और लहू शरीर में वापस आएगा। Remember when John the Baptist is baptizing people in the Jordan River? और आपको याद होगा हम पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, What did the people ask और John the Baptist? और लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से क्या पूछा? They asked him a very important question. और एक बड़ा विशेष प्रश्न पूछा था। They asked John the Baptist, "Are you Elijah?" और उन्होंने उससे पूछा क्या तू एलिया है? Remember that? आपको याद है, पढ़ा है? Because even the Jews believe that Elijah will come back. और यहूदी लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि एलिया एक दिन वापस आएगा, He's taken away. और वो उठा लिया गया है। So they asked John the Baptist, "Are you Elijah?" और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछा क्या तू एलिया है? John the Baptist says, "No, I'm not. और बपतिस्मा दाता ने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, I'm the one who's come to prepare the way for the Lord." और मैं वो हूँ जो प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए आया है। And the other one is Moses or Enoch, that we don't know. और देखिए दूसरा या तो मूसा हो सकता है या हनोक हो सकता है, हमें नहीं पता है अभी। Let's go to Revelations 11. और प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में चले। Verse 2 onwards. Let's read verse 2 onwards. और दूसरे वचन से आगे पढ़े। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौं देंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि जिन उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। Yes. Is that till 6? और छठा वचन पूरा पढ़ लीजिए। कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। Okay. It says here, "And I will give power to my 2 witnesses." और मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार सामर्थ दूंगा, And they will prophesy for 1260 days. और वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। How many months or years is 1260 days? और देखिए 1260 दिन में कितने महीने और वर्ष आते हैं? 3.5 years. और 3.5 वर्ष। Okay. Now it says here, they will witness for 3.5 years. और वो 3.5 साल जो है वो गवाह होंगे। That means the moment the beast breaks the peace treaty, और जिस क्षण वो पशु शांति समझौता तोड़ता है, he'll go and sit in the temple. और वो जाकर मंदिर में बैठ जाएगा, God will send these 2 witnesses. और परमेश्वर इन 2 गवाहों को भेजेगा। Now this side you got the beast doing miracles. और देखिए एक तरफ वो पशु जो है चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, This side you got Elijah and Moses or Enoch doing those miracles. और दूसरी तरफ जो एलिया और दूसरा गवाह है
मूसा या हनोक जो भी वो चमत्कार दिखाएंगे। See, it says here, these are two olive trees and two lampstands that stands before the Lord. और वो कह रहा है कि ये दो जैतून के पेड़ के समान और दो दीवट के समान है जो प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। If anyone tries to harm them, fire will come out from their mouths. और कोई उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा उनके मुख से आग निकलेगी। These men have the power to shut the sky. और इनके पास में आकाश को बंद करने का सामर्थ्य होगा। Who did that? और किसने किया था? In the Old Testament, who shut the sky? और पुराने नियम में आसमान को किसने बंद कर दिया था? Okay, so that it will not rain during the time they are prophesying. और जिस समय वे भविष्यवाणी करे उन दिनों में मेह ना बरसे। And they have the power to turn the waters into blood. और पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे। Who did that? किसने किया था? And to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Who did और that? जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए, ऐसा किसने किया था? Okay? But they will walk in such power, such authority. और वो लोग ऐसे सामर्थ और अधिकार के साथ में पृथ्वी पर चलेंगे फिरेंगे। They will work as a team, 144,000 Jews, and you got two witnesses. और देखिए वो एक दल के रूप में कार्य करेंगे, 1,44,000 यहूदी गवाह और वो दो गवाह। There'll be world revival. और संसार में बेदारी होगा। The beast, the Antichrist and the devil will be put to shame. और देखिए जो ख्रिस्त विरोधी है, शैतान जो है वो शर्मिंदा किया जाएगा। He'll try his best to stop these two. और इन दोनों को रोकने के लिए वो सब उत्तम उपाय करेगा। He'll try his best to stop these 144,000 Jews. और 1,44,000 यहूदियों को रोकने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करेगा, He will not succeed. लेकिन सफल नहीं होगा। The church will only, many more believers will come into God's kingdom. और कलीसिया परमेश्वर के राज्य के अंदर में बहुत सारे विश्वासी प्रतिदिन आते जाएंगे। Okay, let's read verse 7 और 7वां वचन पढ़े, onwards. उसके आगे 7 से आगे पढ़े। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके 100 उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरे विपत्ति बीत चुकी। Yes. Stop. Okay. What do these two do? और ये दो क्या करेंगे? They do all these. Remember all of this? Hail, fire, see? और देखिए ये सभी आपको याद है, ओले गिर रहे हैं, आग है, खून है। All these things, the two witnesses, 144,000 Jews, they'll all speak it. और देखिए जो दो गवाह और 1,44,000 जो यहूदी है वो अपने मुंह से बोलेंगे। Like how Moses said, no, there will come a plague of locusts in the land of Egypt. और जैसे मूसा ने कहा कि मिस्र में टिड्डियों का महारोग होगा, Like that, these two witnesses will stand. और वैसे ही ये दो गवाह खड़े होंगे। They will say, 2 days from now,
और वो लोग कहेंगे अब से 2 दिन hail, fire, and blood will fall on this land. और इस भूमि के ऊपर में अंगारे, आग और लहू बहेगा। Now, they don't have to write letter and all that. Remember, और याद करिएगा, उन्हें ये सब पत्र लिखकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। they'll be on live news, और वो लोग समाचार में होंगे। YouTube, Instagram, Facebook, everywhere it'll come. और देखिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे हर तरफ उन्हीं की चर्चा होगी। All the news will show who is this person. और सारी खबरें जो हैं वो दिखाएंगे ये दोनों कौन है। One news will show the leader, the beast. और एक खबर जो है उनके अगुवे जो उस पशु को उसके बारे में दिखा रहा होगा। Morning they're showing about the beast, evening they're showing about the 2 witnesses. और सुबह उन्होंने उस पशु के खबर को दिखाया, शाम को उन दोनों गवाहों की खबर को दिखा रहे हैं। So imagine these 2 witnesses standing there and they're saying, tomorrow or 2 days from now, there'll be hail, fire, and blood. और सोचकर देखिए वो 2 गवाह खड़े और कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद में स्वर्ग से अंगारे गिरेंगे, आग गिरेगी, लहू बहेगा। Everyone are laughing at them. और सब लोग उनके ऊपर हंसेंगे। But it'll happen. लेकिन होगा। Hey, I remember in the news, this prophet or somebody came and said like this. और लोग कहेंगे, अरे मेरे को याद है, मैंने खबर में देखा था कि 2 लोगों ने आकर इस प्रकार से कहा था। Then maybe, Moses, I'm just painting a picture for you, okay, for you to understand. और देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक तस्वीर बनाकर आपको सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। Moses will be there in the news next. और अगले दिन जो खबर में मूसा आएगा, Facebook Live. और फेसबुक लाइव आएगा। Okay. From tomorrow, there will be 8 hours additional darkness. और फेसबुक लाइव आएगा, इंस्टाग्राम पर आएगा और कहेगा कल से 8 घंटा ज्यादा अंधकार रहेगा बेटा। This is gone mad. अब लोग कहेंगे पगला गया है। But it'll happen. लेकिन होगा। And people will say, hey, that man told the same thing. और लोग कहेंगे, अरे इस आदमी ने बिल्कुल सही बात कही थी। Who are they? और ये है कौन? They are the ones who believe in God. और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Oh, these people are trying to make us और ये fearful. लोग हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। We will not be fearful. और हम डरेंगे नहीं। We'll do what we want to do. और जो हम कर रहे हैं करते ही रहेंगे। We'll follow the beast. He also knows how to do signs, wonders, and miracles. और हम उस पशु के पीछे चलेंगे क्योंकि उसको भी चिन्ह चमत्कार करना आता है। He'll give us the money. He'll give us everything that we need. और जो हमें पैसा चाहिए, जरूरत चाहिए, वो सब पूर्ति कर रहा है। This Jesus and all don't want. और ये यीशु वगैरह हमको नहीं चाहिए। Oh, you're still hardening your heart. और आप अभी भी अपने हृदय को कठोर बनाए हुए हैं। Elijah will come again. और एलिया फिर आएगा। YouTube Live. और यूट्यूब पे लाइव आएगा। From tomorrow, और भविष्यवाणी करेगा कल से। when you wake up in the morning, full sores will be in your body. और जब आप सवेरे उठोगे पूरा शरीर सूजा सुजाया पड़ा होगा। You won't know what to do. और आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है। It's not bed bugs. और वो किसी कीड़े का काटा हुआ नहीं होगा। It is not something that you ate. और ये किसी खाने की वजह से नहीं It's हुआ the है। judgment of God. और ये परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर में है। Who is this person coming and telling all this? और लोग कहेंगे ये आदमी कौन है यार, आके बकवास कर रहा है। Next day morning, और अगले दिन सुबह full of sores. और पूरा शरीर घाव से भरा हुआ। So all of these judgments and bowls are spoken through the mouth of these 2 witnesses and the evangelists. और देखिए ये जितने भी बातें हैं, चाहे वो तुरी हो चाहे वो कटोरा हो, ये उन दोनों गवाहों के मुंह से बोले हुए भविष्यवाणी के शब्द होंगे। Everyone understand that, right? आप समझ रहे हैं? So now the beast and everyone are angry with these 2 witnesses and these evangelists. और अब जो पशु है वो जो है इन दोनों गवाहों से और ये 1,44,000 जो प्रचारक हैं इनसे बहुत क्रोधित हो जाएगा। We can't even kill them. और मार भी नहीं सकते इनको। Because it says there, when they come near to them, when they speak, like fire will come out and consume them. और क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि कोई मारने के नजदीक भी जाएगा, उनके मुख से वो ऐसे बातें करेंगे कि आग के समान निकलेगा और वो उन्हें भस्म कर देगा। Now, don't think real fire will come, no. और ऐसा मत सोचिए कि सच में उनके मुंह से कोई आग निकलेगी। But he'll, like, imagine you're coming in next to Elijah, trying to kill him. Elijah will say, sit down. और देखिए सोच कर देखिए कोई आप एलिया को मारने के लिए उसके पास में आ रहा और एलिया देखकर बोलता है बैठ जा। He'll say, locusts come.
और वो कहेगा टिड्डी आ जाओ, bite him. उसको काट लो। Where he'll try to attack Elijah. और एलिया को कहाँ हमला करने का सोचेगा? Elijah will be in power and authority. और एलिया जो है सामर्थ में और अधिकार में होगा। It's like one movie. और ये बिल्कुल एक पिक्चर के समान होगा। Even Moses will be there. और मूसा भी होगा। 1,44,000 Jews. और 1,44,000 यहूदी होंगे। And what will happen to them? और उनके साथ क्या होगा? When their time is up, जब उनका Very समय important. पूरा हो गया। right? It's not simply, they killed them. No, their time is over. और देखिए ऐसे ही मार दिए गए नहीं, उनका समय पूरा हुआ। So God is allowing this. परमेश्वर इस बात की अनुमति दे रहा है। The beast comes up from the abyss to attack and overpower them and kill them. तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। So the beast will say, these guys are causing the problem. और वो जो पशु है वो कहेगा यही लोग हैं सारी समस्या का जड़, Let's kill them. और आओ इसी को निपटाओ। Now, the Bible says here that they were in the streets. और बाइबल कह रही है वो सड़कों पे पड़े होंगे। I'm just giving you an example. और मैं केवल आपको एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। Maybe they are preaching in the streets, street ministry. और हो सकता है कि वो सड़कों पे कोनों पे खड़े होके सेवा कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे। And some sniper from far away, और कहीं दूरी से कोई निशानेबाज kill him. मार देगा। Both of them die. दोनों मर गए Both are fallen on the street. और दोनों के शव जो है सड़क पे पड़े हैं। Now everyone are happy. और सब खुश हो जाएंगे। These two are the fellows who caused all these problems. और यही दोनों थे जिनके वजह से ये सारी समस्या हमारे ऊपर पड़ी। Now all the problems will go. सारी समस्या हमारी खत्म हो गई। So they started sending gifts to each other. और अब वो एक दूसरे को तोहफे भेजने लग गए। Meaning they all celebrated. और सारे के सारे जो है आनंद मना रहे हैं। They didn't even want to honor them by giving them a burial. और देखिए उनको दफनाने के द्वारा उस मृत शरीर को वो आदर भी नहीं करना चाहते। Because they wanted to see the body and say, serves you right. और क्योंकि वो उनके शरीर को वैसा ही पड़ा हुआ देखकर कहना चाहते हैं कि तुम इसी के लायक हो। You don't even deserve to be, buried properly. और वो कहते हैं कि तुम्हें तो दफनाने तक का भी हक नहीं You है। caused all these problems. और क्योंकि इतनी सारी समस्या तुमने हमारे सर पर डाली They है। will look at the body and they will all laugh and mock them. और उनके शरीर को, उनके मृत शरीरों को देखेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, मखौल उड़ाएंगे। But God turns the situation. लेकिन परमेश्वर जो है उसे भी बदल डालेगा। For 3.5 days, they will be on the road. और 3.5 दिन वो सड़क पर उनके शव पड़े रहेंगे। Dead on the road. और शव हैं, मरे हुए सड़क पर पड़े हैं। It was like a reminder. Anyone who tries to do anything against the beast, this is your result. और देखिए ये बिल्कुल ऐसा होगा कि इस बात को लोगों को याद दिलाया जा रहा है, पशु के खिलाफ जो भी कुछ करेगा उसका हाल ये होगा। But after 3.5 days, लेकिन 3.5 दिन के बाद में a breath of life from God entered them. परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। Now, they stood up to their feet. और अपने पांव पे खड़े हो गए। And terror struck those who saw them. और उन देखने वालों पर भय छा गया। Now imagine this. और जरा कल्पना करके देखिए, 3.5 days they are there lying और on the road. 3.5 दिन मरे हुए उनके शव सड़क पर पड़े हैं। All of a sudden, और अचानक से the breath of life comes into them और उनके अंदर जीवन का श्वास आ जाता है and they stand up. और वो खड़े हो जाते हैं। Now the Bible says they saw them, so they were not spirit. और इसका बाइबल कह रही है कि लोगों ने उन्हें देखा, इसका मतलब वो आत्मा में जी नहीं उठे। They got up, they got their glorified body, which we already have when we are in heaven. और देखिए इसका मतलब है उन्हें महिमा में देह मिला, जो हमको भी मिला है और हम पहले से स्वर्ग पहुंच चुके हैं। See, everyone have to get the glorified body. और सभी को वो महिमा में शरीर प्राप्त करना जरूरी है। So they get the glorified body, और जैसे ही वो महिमा में शरीर मिलेगा, and terror struck those who saw them. और जिन्होंने देखा वो भयभीत हो गए They started shaking. और वो
हिलने लगे, कांपने लगे। What does it say? और आगे क्या लिखा है? Then they heard a loud voice from heaven. और तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना, Come up here. और यहाँ ऊपर आओ। And they went up to heaven in a cloud. और वे बादल पर सवार होकर स्वर्ग पर चढ़ गए, While their enemies looked on. जबकि उनके बैरी उन्हें देखते रहे। Now imagine this. कल्पना करिए जरा, You got 10 news channels all around. और 10 न्यूज चैनल आसपास खड़े हैं, You're watching the news. और आप खबर देख रहे हैं। In the news, they're showing this 2 dead bodies are here lying down. Nobody even wants to take them. और खबर कह रही है कि ये 2 मृत शरीर हैं जहां सड़क पे पड़े हैं, कोई उन्हें उठाने वाला नहीं है। These are the people of God who did many things against our leaders. और ये वो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने हमारे नेता, हमारे अगुवे के विरोध में बहुत सारे कामों को किया। After third day also they're coming and taking news. और तीसरे दिन भी आते हैं और वो आके खबर दिखा रहे हैं। Still the body is here. और आज भी शरीर वहीं पड़ा है। And our leaders are saying, they don't want to even give a proper burial. और हमारे अगुवे कहते हैं कि हम तो इन्हें सही, हमें दफनाना भी नहीं है इनको। There's YouTube live, Facebook live, BBC News, all the news is there. और देखिए सारी खबरों के चैनल वहां पर है, यूट्यूब भी लाइव हो रहा है, फेसबुक भी लाइव हो रहा है। The Bible says the whole world will see it. और बाइबल कहती है पूरा संसार देखेगा। Now, John doesn't know about TV and YouTube and Facebook. और देखिए उस समय पे यूहन्ना को टीवी के बारे में, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में कोई पता भी नहीं था। But is it possible now? क्या ये अभी संभव है? Even if it's a small village in India, और गांव का एक छोटा सा गांव भी, if you take a video, और यदि आप एक वीडियो ले, it can go viral that even the whole world can watch that video. और वो इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि पूरा संसार उस वीडियो को देख सकता है। I don't know, somebody sent me one video where this boy, young boy, how many of you know that Rubik's Cube? Right? That colors, you change the colors, right? और एक प्लास्टिक का चौकोना सा डब्बा होता है ना, घुमाते रहते हैं उंगलियों से, देखा है क्या? क्यूब बोलते हैं, क्यूब। Rubik's Cube. So there's one young boy, I think from a small town in Andhra Pradesh. और एक जवान लड़का आंध्र प्रदेश के एक गांव से, He used to make small videos on the phone. और वो फोन पे छोटे छोटे वीडियो बनाता था। So he'll do it fast like this and he'll show. और बहुत तेजी से बनाता और वो दिखाता था, शॉर्ट्स बनाता And था, then he used to make tricks and show. और कई कला तरीके से वो उसको बनाता था। People started watching it. और लोग देखने लगे, Suddenly millions of views. और लाखों, उसके करोड़ों दर्शक बन गए, देखने वाले बन गए। All around the world, people are watching him do that Rubik's Cube. और देखिए संसार भर के अंदर में लोग जो है अब उसको देख रहे हैं कि वो कैसे बनाता है। Then he blindfolded himself और फिर उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली and he would do that. और फिर उसको करता है, All in one room, huh? और सब एक कमरे में छोटे से, In Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के। But people all around the world are watching it. और लेकिन संसार भर के लोग उसको देख रहे हैं। The same way. और And he joined because of the videos, people called him to join the world record, Guinness Book of World Record, to try it out there. और देखिए उसके इतने ज्यादा लोग देखने वाले हो गए कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए बुलाया गया कि वो आके प्रतियोगिता में लड़े। I think he also did it in 5 seconds, 5 or 6 seconds. He finished the whole thing. और 5 या 6 सेकंड में उसने पूरा भी किया है। Whole world saw it. पूरे संसार ने देखा। Same way. बिल्कुल वैसे ही The people will see it. Some of them who are walking there will see in person. और देखिए पूरा संसार देखेगा, कई लोग जो वहां पर होंगे वो चलते फिरते उन्हें वहीं देखेंगे। They will see that Moses and Elijah standing up. और वो देखेंगे कि मूसा, एलिया वहां खड़े हैं। They will see them going up in the clouds. और वो देखेंगे कि वो बादलों पर ऊपर उठा लिए गए हैं। Those who are at home celebrating, और जो घर पे मनोरंजन कर रहे होंगे, मना रहे होंगे, watching either on YouTube or news, और या तो खबरों में देख रहे होंगे या यूट्यूब में देख रहे होंगे, they'll see the body standing.
और वो देखेंगे अरे वो मरा शरीर जिंदा हो गया, and they are going up in the cloud. और वो बादलों पे उठाया जा रहा है, Fear will come over them. और डर जो है उनके ऊपर में हावी हो जाएगा। At that time, verse 13 says, at that very hour, a severe earthquake will happen. और देखिए उसी घड़ी 13 वचन कह रहा है कि एक बड़ा भूकंप होगा। Look at this. Earthquakes and hailstones. It could be the same thing. और देखिए 7वीं तुरी के समय पर जो भूकंप है और ओले का गिरना हो सकता है कि इसी समय पर हो, But it'll happen across the world. लेकिन ये संसार भर में होगा। Now, one more thing we'll talk about and we'll close for और today. देखिए एक और बात करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। During the 7-year tribulation, और 7 साल के इस कलेश के समय में there will be something called as, you will see this everywhere, the fall of Babylon. और एक और घटना जिसे हम कहते हैं बेबीलोन का गिराया जाना। It's basically, Babylon is referred, it's chapter 17 and 18, you'll see that. और 17 और 18 अध्याय के अंदर में आप इस बात को देख सकते हैं, बेबीलोन का पतन। It's a power system. और ये एक तंत्र या शक्ति तंत्र हम कह सकते The हैं, economic system. और ये एक अर्थव्यवस्था का तंत्र See, होगा। during this time, many of them will put their faith in money. और देखिए इस And समय wealth. के अंदर में बहुत सारे लोग संपत्ति में और पैसे में अपने विश्वास को रखेंगे, भरोसे को रखेंगे, Money will drive people away from God. और पैसा लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाएगा। And Satan will give enough and more money. और शैतान जो है उन्हें बहुत पैसा देगा। What do you want? You take money, I'll give you. और क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए, ले लो। He gives the beast, और तुम पशु को देगा, he'll give the false prophet, और वो झूठे भविष्यवक्ताओं को देगा, he'll give his followers whatever you want, take money. No और problem. उसका अनुसरण करने वालों को जो चाहिए वो देगा। पैसा चाहिए, पैसा ले लो। So people will be lovers of money at that time. और उस समय पर लोग जो है पैसे के प्रेमी होंगे। Listen, money is a tool which the devil can use very powerfully. और ध्यान से सुने, पैसा एक ऐसा औजार है, उपकरण है, जिसका इस्तेमाल शैतान बड़ी सामर्थ के द्वारा कर सकता है। Money, God made money. परमेश्वर ने पैसे को बनाया, Earning money is important. और पैसा कमाना जरूरी है, We need money. और हमें पैसे की आवश्यकता है। Whether we are, working or working professionals in ministry, we need money. और चाहे हम नौकरी धंधा करते हो, चाहे हम सेवकाई करते हो, हम सबको पैसे की आवश्यकता है। Can I take 5 minutes? 5 मिनट और Sorry, लेने I didn't आपके। see the time. 5 minutes, okay? But if you want to go, you go. I'll just finish, okay? और 5 मिनट है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। So money. पैसा, For money, Judas betrayed Jesus. और देखिए पैसे की वजह से यहूदा ने यीशु को पकड़वाया। So money changes everything in our mindset. और पैसा हमारे मन के हर एक चीज को बदल डालता So है। always remember, as believers, और एक विश्वासी होने के नाते हमेशा याद रखिए, God will bless us. परमेश्वर आशीष करेगा, God will give us money and everything, resources that we need. और जो चाहिए पैसा या कोई भी प्रबंध चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। Don't run after money. लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना है, Don't let money control your life. और पैसा आपके जीवन को नियंत्रण ना करे। Believe God, you have control over the money. और आप पैसे पे नियंत्रण रखें, परमेश्वर पे विश्वास रखें, Whatever little or more that you have, और जो थोड़ा और अधिक आपके पास में है, if God will bless you. और परमेश्वर जरूर आपको आशीष He करेगा, will multiply it. और वो बढ़ाएगा, बहुगुणित करेगा। But you don't run after money. लेकिन आप पैसे के पीछे मत भागना। And I'll give you this example. I don't know if anyone else has shared it, but this is just for our information. और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बता नहीं दूसरों ने दिया या नहीं दिया, लेकिन केवल सूचना मात्र एक उदाहरण दे रहा हूँ। It's not that we are proud of it or something. और ऐसा नहीं है कि हम किसी इस बात पे बड़ा घमंड करते See, हैं। in APC as a church, we don't ask people give money, give money. We never ask. और देखिए एपीसी कलीसिया के अंदर में हम ये लोगों से नहीं कहते कि पैसा दो, दान दो, पैसा दो, नहीं, हम कभी नहीं मांगते। I've been here for more than 15 years. I have never seen a time when we told people give money.
और देखिए 15 साल से अधिक हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि लोगों से हम कहें कि पैसा दो। This second offering business is not even there. और देखिए दूसरे प्रकार का दान का कोई लेन देन ही नहीं है। From beginning, huh? और शुरुआत से ही। Don't think, oh, you're big church, that's why. No, और from ऐसा- the beginning. और ऐसा मत सोचिएगा बड़ी कलीसिया इसलिए नहीं, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा नहीं है। Because we don't do what we're doing because of money. Money is देख- important. और हम जो कर रहे हैं वो पैसे की वजह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा जरूरी है। See, we wanted to buy a land for our church. और We all went and saw the land. हमने कलीसिया के लिए एक जमीन खरीदना था। क्या आप सभी जाके वो जमीन का टुकड़ा देखकर आए हैं? No, okay. Oh, that was the last year's batch. Okay. और पिछले साल के बच्चे सौभाग्यशाली थे, देख के आए। Okay. So don't worry about that. But the thing is, we never asked them, oh, we need this money. We only said, this is the cost of the land. This is what we need to build. और देखिए हमने केवल कलीसिया से इतना कहा, भूमि का कीमत इतना है, बनाने के लिए इतना लगेगा। This is the economy. If you want to give, you give. और देखिए ये उसका लेखा है और ये उसका खाता है, जो आप देना चाहते हैं तो दीजिए। We never asked them second offering for building, second offering for land, nothing. और देखिए भवन के लिए, भूमि के लिए दूसरा दान कभी नहीं मांगा। And the amount is not a small amount, it's a big amount. और वो जो राशि थी वो भी कोई छोटी राशि नहीं, बड़ी राशि थी। Within a year, it was covered. और एक साल के अंदर पूरा हो गया। We said, for building, we need so much. और हमने कहा भवन के लिए हमें इतना चाहिए। Within a year, it is covered. और एक साल के भीतर पूरा हो गया। No begging, और भीख नहीं मांगा। no asking second offering, all that business. और देखिए दूसरा दान, तीसरा दान, वो सारा व्यापार नहीं किया, God will give it. परमेश्वर ने दिया। You understand? आप समझ रहे हैं? So remember that God is in control of the money. और पैसे का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। People will put their faith in money. और लोग अपने भरोसे विश्वास को पैसे पर लगाएंगे। Mostly it will be the stock market. और ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट है, They'll put all their money in the stock market. और सारा का सारा पैसा जो है लोग अपना स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। But in one moment, लेकिन एक क्षण के अंदर में the stock market will fall. और स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाएगा। Maybe somebody has put 15 or maybe 50 lakhs in the stock market. और हो सकता है किसी ने 50 लाख उसमें लगाया होगा। And they said, we'll make it in 5 years, it will become 1 crore. और वो कहेंगे 5 साल के अंदर में 50 लाख 1 करोड़ हो So their जाएगा। hope is in that only. और उनकी आशा उसी पर टिकी है। But in 1 second, that stock market will fall. लेकिन एक क्षण के अंदर में वो पूरा का पूरा एक ही क्षण में गिर जाता है। What about the 50 lakhs? और 50 लाख का क्या हुआ? Zero. और वो शून्य बन गया। The stock market will fall. और जो स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगा। So people's faith in the money also is gone. और लोगों का जो भरोसा विश्वास पैसे पर है वो भी चला गया। But the believers, लेकिन विश्वासी, my God shall supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। God will provide. परमेश्वर पूरा करेगा Every need will be met. और हर जरूरत पूरी होगी। For ministry, for these evangelists, और money will be there. और सेवकाई के लिए, इन सेवकों के लिए पैसा जरूर उपलब्ध होगा। Okay, everyone understood just a picture of what's happening? Okay. और आप समझे हैं जो तस्वीर बनाई गई है जो होने पर है। Tomorrow we look at millennium, the great white throne judgment, new heavens and the new earth, and we'll close. और देखिए कल हम 1000 वर्ष के राज्य को देखेंगे और वो परमेश्वर का श्वेत न्याय आसन और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे और समाप्त हो जाएगा। Okay, let's close in prayer. और आइए प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, जितना भी आज हमने अध्ययन किया है पूरी रीति से आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप सहायता करिए, किसी भी प्रकार की दुविधा ना होने पाए, कंफ्यूजन ना होने पाए, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही हमारे मन के अंदर में कार्य करिए ताकि हम हर वचन को आपकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा समझने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। All right, thank you everyone. धन्यवाद, आप जा सकते हैं।